Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is predation and another ecological interspecific interaction. Now, what is this predation? Predation actually is an act of capturing, killing and eating. प्रेडेशन में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहले कैप्चर करता है, पकड़ता है, फिर इसको मारता है, किलिंग इसकी करता है एंड आफ्टर दैट फिर इसको खाता है, यानी कि ईटिंग। नाउ इसमें दो चीज होते हैं, प्रेडिटर और प्रे, प्रेडेटर एंड प्रे। The organism which captures, kills and eats is called the predator. On the other hand, prey वो organism होता है which is killed and being eaten. तो जो ये act करता है, जो predation, the organism which performs this act of predation is called the predator. On the other hand, the organism upon which the predator feeds is called the prey. Okay, now जहां तक predator का ताल्लुक है, it is not able to survive without the prey. prey के बगैर तो predator जिंदा नहीं रह सकता है, यानी कि तो इसके अलावा जहां तक ये प्रेडेटर्स का ताल्लुक है, मोस्टली द प्रेडेटर्स और एनिमल्स, जहां तक प्रेडेटर्स का ताल्लुक है, दे बिलोंग और दे कम फ्रॉम द एनिमल्स, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर आल्सो सम प्लांट्स व्हिच बिहेव लाइक प्रेडेटर्स. तो लेट अस सी फर्स्ट द व्हिच आर द एनिमल प्रेडेटर्स. Animal predators. Animal predators are basically all the carnivorous animals, that is flesh eating animals, except scavengers which eats the dead animals. Scavengers के बगैर जितने भी carnivorous animals होते हैं, they actually are the predators among the animals. ठीक है, तो जहां तक इन predators का ताल्लुक है, they belong to all major groups or they come from all major groups, like these includes paramecium, oblea, oysters, इसी तरह starfish. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे this sharks, frogs, snakes, lizards, इसी तरह lions, tigers, panthers, ये सब के सब they act as the predators as they perform the process of predation. तो ये predation के process से ही अपनी feeding करते हैं. तो एक और चीज को, जितने भी carnivorous animals होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं predators. इसी तरह they belong to all major groups. They belong to all major groups. Basically, in nature, the animals are linked by means of the predator food chains. That means one animal eats other animal, or one animal takes other animals, and this animal is taken by some other animals, or it becomes the predator to the other animals. So in this way we can say, जहां तक नेचर में इन एनिमल्स का ताल्लुक है, they are linked by means of the predator food chain. Predator food chain. Predator food chain here means मतलब first animal eaten by second animal, and this in turn taken by third animal.
ये जो यहाँ पे प्रे था ये प्रेडिटर था, लेकिन यहाँ पे ये अब प्रे बनेगा टू दिस एनिमल, दिस विल द प्रेडिटर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन is observed in the food chains or in case of the predator food chain. तो एक और पॉइंट इसमें अगर हम देखेंगे कि जहां तक मतलब अगर हम देखेंगे, सपोज हम इसमें प्रेडिटर फूड चेन में ये एग्जांपल देंगे, जो फ्रॉग है, frog is taken by snakes and snake is taken or it becomes the prey of the eagles, ठीक है ना। यहां पे जो फ्रॉग था ये प्रे थी, लेकिन इस स्नेक जो यहां था ये थी प्रेडिटर, लेकिन जब ईगल स्नेक को खाएगा ये प्रेडिटर होगा एंड स्नेक विल बिकम द प्रे, ठीक है। तो यहां पे यही प्रोसेस ऑपरेट होती है, वन एनिमल बिकम्स द prey of the other animal becomes the prey of the next higher animal. So in this we can say in nature there are the animals are linked by means of these predator food chains, ठीक है। तो अगर इसी तरह अगर हम देखेंगे जो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, पैंथर्स होते हैं, they are the predators, they are the predators upon deers and antelopes. तो इनके ऊपर ये फीड करते हैं, इनको ये बिल्कुल शिकार करते हैं, इनकी प्रेडेशन ये करते हैं, लायन, टाइगर्स और अदर बिग कैट्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे या कुछ प्रेडिटर्स ऐसे भी होते हैं, दे गेट द डबल बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द रेडिएशन। मतलब अगर हम स्नेक की बात करते हैं, स्नेक ऑफन टेक्स फ्रॉग्स, आफ्टर ईटिंग द फ्रॉग्स इट आल्सो hijacks the holes of these frogs and lives inside these holes. यहाँ पे इसको एक शेल्टर भी ये मतलब मिलता है और प्रे भी मिलता है। हम ये कहेंगे यहाँ पे डबल बेनिफिट मिलता है प्रेडेशन से ऑर्गेनिज्म को, डबल बेनिफिट थ्रू दिस प्रेडेशन। तो एक और चीज हम इसमें याद रखेंगे, समटाइम्स herbivores also act as the predators. How? देखो अगर हम देखेंगे कि काउ जो है, काउ destroys its food plants and the sparrow that eats the seeds, that means plant embryos. तो इस during the process of and we can say thereby they reducing the population of the organisms upon which they feed. तो हम ये कहेंगे कि ये भी एक्ट एज करते हैं यहाँ पे प्रेडिटर्स। कौन? सम हर्बिवोर्स लाइक काउ जो डिस्ट्रॉय करती है क्रॉप प्लांट्स को या फूड प्लांट्स को, इसी तरह जो स्पैरो फीड करता है upon the seeds thereby destroying the plant embryos there. तो ये रही बात regarding the animal predators. मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि there are some exceptional cases where the plants may also act the predators or they may also show this phenomenon of predation. Like हम देखेंगे there are some plants like sundew, इसी तरह एक और है ली ब्लेडर, यूट्रिकुलेरिया, या हम देखेंगे पिचर प्लांट्स, या अगर हम देखेंगे वेनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट्स क्या होते हैं? They basically feed upon the insects and are known as sometimes insectivorous plants. ठीक है, इनको insectivorous plants भी कहते हैं because they feed, they here predate
upon these insects. यहाँ पे जो ये plants हैं, they act as the predators and their preys are the insects, because the insects are eaten by these plants through during their nutrition. तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ये भी यहाँ पे process of predation दिखाते हैं. Now जो predator होता है, बिल्कुल ये कुछ इडॉप्टेशंस दिखाते हैं, मतलब ये अपने आप को इडॉप्ट करता है, ये अपने बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, अपने बॉडी में चेंज लाता है इन ऑर्डर टू प्रिडेट इन ए बेटर एंड एफिशिएंट वे. तो अच्छी तरह से प्रिडेशन करने के लिए ये प्रेडेटर क्या करता है, अपने आप को इडॉप्ट करता है. इडॉप्ट इन द सेंस कि अगर हम देखेंगे इसका जो मतलब ये फिजिकल स्ट्रेंथ, adaptation of predators, physical strength, they are physically very strong. जो predators होते हैं, they are physically very strong. Their texture is built in a very strong manner. या इनका टेक्सचर जो है, इनका बॉडी जो होती है वो स्ट्रांग होती है. हम ये कहेंगे फिजिकली दे आर पावरफुल, दे आर स्ट्रांग. दूसरा अगर हम देखेंगे स्पीड, they are always fast, they possess the speed as when they follow the prey to catch it, to capture it, they need the speed. तो वो भी इनके पास होती है. अगर हम देखेंगे some predators they actually secrete the venom, that means poison, like snakes, ठीक है ना. तो ये भी ये मतलब किसी वक्त ये, इसी तरह इनमें जो टीथ भी मॉडिफाइड होते हैं. टीथ इनके कैसे होते हैं, यूजुअली दे आर शार्प, दे आर पॉइंटेड, है ना, चीजल शेप्ड. तो इनके टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि कुछ मतलब के पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल, जैसे कि सिलेंट्रेट्स, है ना. तो सिलेंट्रेट्स के अंदर ये मतलब स्टिंगिंग सेल्स, दे possess stinging cells in so that they sting to their prey and paralyze it, and after that they eat that very prey. तो इसी तरह हम देखेंगे कि इवेटेबल स्टोमक, इवेटेबल स्टोमक किन में होती है, स्टार फिश में. स्टार फिश जो होते हैं इसके अंदर जो स्टोमक होता है, इस स्टोमक को इरेक्ट करके मतलब फिर अपने प्रे को मतलब किल करता है. इवेटेबल स्टोमक हम कहेंगे. तो इसी तरह आपने देखा होगा स्पाइडर वेब. स्पाइडर वेब जो होता है ना, स्पाइडर का जो वेब होता है, इसमें जब वो पहले उस वेब को सिक्रीट करता है तो इसमें फिर इसके प्रे जो होते हैं, जो इसका मतलब प्रे होता है, वो फिर इसके अंदर ट्रैप हो जाता है. एंड आफ्टर दैट दिस स्पाइडर ईट्स और फीड्स अपॉन दीज स्मॉल इंसेक्ट्स व्हिच गेट्स ट्रैप्ड इन दिस वेरी वेब. So these are the various adaptations which are shown by the different these predators. तो एक और चीज हम देखेंगे, प्रे प्रेडिटर बैलेंस. प्रेडिटर प्रे बैलेंस ये क्या होते हैं, प्रे प्रेडिटर बैलेंस. देखो एज यूजुअल अगर हम देखेंगे कि the number these basically the process of predation, it actually maintains somehow the prey predator balance in nature. देखो कैसे, अगर हम as usual देखेंगे कि the number of preys are always more as compared to the number of predators. This is because the prey they always possess the high reproductive potential, while as the predators they are the slow breeders. लेकिन जब population of the prey when it gets increased, जब इनकी मतलब population बढ़ जाती है preys की, उस वक्त क्या होता है, the
predators, they get heavy tools. They take heavy tools of these prey, thereby reducing their population. इस तरह ये इसको चेक करता है. को in absence of predation, अगर predation नहीं होती है, the population or the number of these prey will get increased tremendously, and they will actually go beyond the carrying capacity of the environment, and thereby they may actually get subjected to the death due to the starvation. जहाँ पे जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे वहाँ पे starvation का भी चांसेस रहता है. But these are the predators which check their population, they feed upon them. तो किसी वक्त इनकी पॉपुलेशन अगर क्रिटिकल लेवल से कम हो जाएगी प्रेज की, उस वक्त प्रेडिटर को किसी अल्टरनेट प्रे पे फीड करना पड़ता है, अदरवाइज वो भी परिश हो सकता है, उसकी भी एक्सटिंक्शन हो सकती है. दिस इज रिगार्डिंग हाउ दे actually maintain the balance in the ecosystem, तो in the environment. इसी तरह एक और इसकी एप्लीकेशन है जिसको हम कहेंगे ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रे प्रेडिटर रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कुछ मतलब ये होते हैं लेडी बर्ड बीटल्स जो होते हैं, दे एक्चुअली प्रिडेट upon the insects, upon the insect एफिडस, मतलब जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं लाइक एफिडस के ऊपर ये प्रिडेट करता है. इसी तरह अगर हम देखेंगे लार्विसिडियल फिशेस लाइक गेम्बूसा, ये फीड करते हैं upon the mosquito larvae. इस तरह ये हम कहेंगे दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द बायोलॉजिकली पेस्ट्स को कंट्रोल करना. दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज predator prey relationship. So this is all regarding today's subtopic, that is predation. So we will today conclude here. Tomorrow inshallah we will take another subtopic. Till then, fi amanillah.